Welcome to Tathastu Institute of Civil Services. This is the first episode of Places in News playlist. In this playlist, we are going to discuss different places that have been there in the news. The first episode, that is today, we are going to discuss the places that have been there in the news for December 1st week. So without wasting much time, we'll start with the first place, that is France. France was in news because there is a no confidence motion that has been introduced in the Parliament of France. हम फ्रांस के बारे में इससे ज्यादा नहीं समझेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद फ्रांस में क्या होगा, बट व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज दैट हाउ इज फ्रांस इंपॉर्टेंट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम यूपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर पाए. Before moving ahead, let us understand that how is France surrounded, by what all regions is France surrounded. Starting from the north, France is surrounded by a water body known as English Channel. On the east, in the clockwise direction, if we go in the east, we have Belgium, we have Luxembourg. ये छोटी सी कंट्री, यहाँ पे एक लग्जमबर्ग है. उसके बाद we have Germany continuing. Germany के नीचे we have Switzerland. In the southeast we have Italy. In the south we have Mediterranean Sea. And in the southwest we have Spain. अगर आप स्पेन और फ्रांस के बीच में थोड़ा सा और फोकस करें तो आपको एक छोटी सी टेरिटरी मिलेगी जिसको बोलते हैं अंडोरा. ये एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है अंडोरा, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस. एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द फ्रांस इट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन. सो दीज आर द डिफरेंट टेरिटरीज, दीज आर द डिफरेंट रीजन्स दैट यू शुड रिमेंबर दैट इज सराउंडिंग फ्रांस. इसी को अगर लिखित में देख लें, रिटन फॉर्म में देख लें, इन द नॉर्थ इट इज इंग्लिश चैनल, फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्ट बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, ईस्ट जर्मनी स्विट्जरलैंड, साउथ ईस्ट इटली, साउथ. This is something important, that which water body is present at the south of France? Mediterranean Sea, yes, but what is Mediterranean Sea is so huge. What inside Mediterranean Sea is Gulf of Lion? So this is something that you need to remember. One water body that you will learn today, Gulf of Lion, is present at the south of France. Similarly, on the western side there is something known as Bay of Biscay. We know that it is Atlantic Ocean on the west of France, but what exactly in the Atlantic Ocean is Bay of Biscay? So two water bodies that you will learn today, one is Gulf of Lion that is present at the south of France, and another is Bay of Biscay which is present at the west of France. Moving ahead with some additional information, like what kind of government does France have? France has a unitary semi-presidential republic and a bicameral legislature. That simply means that semi-presidential republic means that where the head of the state, the president, is elected. Semi-presidential means that there is a president and there is a prime minister. आमतौर पे हम क्या देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट, बट इन केस ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल यहां पे उल्टा हो जाता है कि प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, बट प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन प्राइम मिनिस्टर. सो दैट इज सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक. यूनिटरी का मतलब जैसे आपको पता ही होगा कि वेयर द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, एंड वेरी लेस पावर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट. तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आया. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, देयर आर टू हाउसेस, देयर इज अ लोअर हाउस एज वेल एज देयर इज एन अपर हाउस. क्या फ्रांस की कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है? यहां से क्वेश्चन बन सकता है. यस, दो टेरिटरीज है. एक है फ्रेंच सदर्न टेरिटरीज. अब जैसे कि आपको मालूम है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत सारी हैं. इसका मतलब मेनलैंड फ्रांस के अलावा पूरे वर्ल्ड में फ्रांस की अलग अलग जगह पे बहुत सारी टेरिटरीज हैं. ऐसी 12 टेरिटरीज हैं फ्रांस के पास, जिसमें से एक है जिनको हम बोलते हैं फ्रेंच सदर्न टेरिटरीज. फ्रेंच सदर्न टेरिटरीज का मतलब है, ये देखिए, ये इंडिया, ये अफ्रीका और यहां पे फ्रांस. इंडियन ओशन और अंटार्कटिक ओशन में कुछ टेरिटरीज है, कुछ आइलैंड्स है विच आर स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस. ये फ्रांस की कॉलोनी नहीं है, फ्रेंच लोग ही है, फ्रेंच टेरिटरी ही है, फ्रेंच सॉवरेनिटी है, फ्रेंच गवर्नमेंट है, सब कुछ फ्रांस का है, लेकिन मेन लैंड से बाहर है, इसलिए फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज बोलते हैं. क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेरिटरीज हैं, कुल मिला के 12 ऐसी टेरिटरीज हैं. One of those territories known as French Southern Territories are disputed because France, along with France, there is an African country known as Madagascar. ये है Madagascar. Madagascar and France both claim French Southern Territories. तो ये एक disputed territory है between France and Madagascar, French Southern Territories. एक और disputed territory इसको बोलते हैं Mont Blanc. Mont Blanc एक mountain है. ये spelling गलत नहीं, Mont ही बोलते हैं. और ये हाईएस्ट पॉइंट है फ्रांस का हाईएस्ट पॉइंट है. और ये प्रेजेंट कहां है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड. ये अगर फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड का जो ये बॉर्डर है, इस फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे यहां देखिए, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है.
ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है, और ये बॉर्डर पे ही हम देखते हैं एक माउंटेन रेंजेस है, एल्प्स माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें बहुत सारी पीक्स बॉर्डर के आगे और पीछे, लेकिन एक पीक ऐसी है माउंट ब्लैंक जो बॉर्डर पे ही एग्जिस्ट करती है. इट इज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस एंड इट इज क्लेम्ड बाय स्विट्जरलैंड. इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन बोथ फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड. तो दो टेरिटरीज आपको याद रखनी है जो फ्रांस की है, जो क्या है, जो डिस्प्यूटेड है. एक है फ्रेंच सदर्न टेरिटरीज बिटवीन फ्रांस एंड मेडागास्कर, और एक है माउंट ब्लैंक जो एक माउंटेन है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे. कुछ और इंफॉर्मेशन भी आप जान सकते हैं, जैसे फ्रांस इज द कंट्री विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड. ये चीज आपको याद रखनी है. जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है. कुछ 12 टाइम जोन्स हैं पूरे वर्ल्ड में. इससे ज्यादा टाइम जोन्स किसी और की कंट्री के पास नहीं है. रशिया के पास भी, जो लार्जेस्ट कंट्री है, क्योंकि उससे ज्यादा टेरिटरी फ्रांस के पास है ओवरसीज टेरिटरी में. लियोन एक ऐसी सिटी है, आप यहां मैप में भी देख सकते हैं लियोन सिटी कहां है. लियोन सिटी, ये यहां पे लियोन, ये पेरिस कैपिटल है, और लियोन सिटी एक और सिटी है. लियोन सिटी हैज बीन कंसिडर्ड एज द क्वाइटेस्ट सिटीज अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 विच इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी. नॉइज पोल्यूशन के मामले में सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस कौन सी है? लियोन सिटी है, जो 2022 एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट में लिखी गई है. नेपोलियन बोनापार्ट एक सिटीजन थे, जो आप जानते हैं जनरल थे, आगे जाके वो मोनार्क भी बनेंगे फ्रांस के, हु वाज born in Corsica. Where is Corsica? फ्रांस का एक आइलैंड है जो फ्रांस के जस्ट बगल में. कॉर्सिका, कॉर्सिका एक डिस्प्यूटेड आइलैंड नहीं है, ये फ्रांस की ही टेरिटरी है. ये इटली और फ्रांस के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है. इटली मानती है कि कॉर्सिका जो है वो फ्रांस का ही पार्ट है. और इसी कॉर्सिका आइलैंड में नेपोलियन बोनापार्ट, द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने बहुत सारी वॉर जीती और जिताई है फ्रांस को, वो पैदा हुए थे और उन्होंने आगे जाके फ्रांस में रूल भी किया था. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, लेट अस ट्राई वन क्वेश्चन. There is an assertion and there is a reason. The assertion says that France has 12 time zones maximum in the world. This is absolutely true. हमने इसको पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. रीजन है कि इतनी सारी टाइम जोन्स क्यों है? बिकॉज फ्रांस हैज द मोस्ट ओवरसीज टेरिटरीज इन द वर्ल्ड. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज फ्रांस डज नॉट हैव द मोस्ट ओवरसीज टेरिटरीज. द मोस्ट ओवरसीज टेरिटरीज इज विथ यूके. यूके हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज टेरिटरीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट हैज मैक्सिमम टाइम जोन्स. ऑल द टेरिटरीज ऑफ यूके आर इन अटलांटिक ओशन. नॉट ऑल, बट मेजॉरिटी ऑफ द ओवरसीज टेरिटरीज ऑफ यूके आर इन द अटलांटिक ओशन. तो उसको स्प्रेड अक्रॉस नहीं है, स्प्रेड अक्रॉस नहीं तो अलग अलग टाइम जोन नहीं, एक ही टाइम जोन में सब कवर हो जाता है. बट फ्रांस हैज मल्टीपल, नॉट मैक्सिमम बट मल्टीपल ओवरसीज टेरिटरीज, and these overseas territories are spread across the whole world. Therefore सारी वर्ल्ड की सारी टाइम जोन्स इंक्लूड हो जाते हैं. Therefore we say France has maximum time zones but it does not have maximum overseas territories. तो A is right, R is wrong, so correct answer becomes C. I hope आप समझ पा रहे हैं कि यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन. जरूरी नहीं है कि फ्रांस में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो फ्रांस में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या होता है ये समझे. नहीं, फ्रांस पे क्वेश्चन आया है तो फ्रांस के बारे में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी. Moving ahead with the second place, that is Syria. We all know that there is an ongoing civil war in Syria. Syria को अगर हम मैप में देखें, so that is the map of Syria, in which again we'll see in the clockwise direction. In the north, Syria is surrounded by Turkey. In the east, it is surrounded by Iraq. In the south, it is surrounded by Jordan. और अब अगर आप वेस्ट में आएंगे तो वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आप देखेंगे इजराइल है और वेस्ट में लेबनान है, और लेबनान के साथ साथ मेडिटेरियन सी भी है. तो दीज आर दी डिफरेंट टेरिटरीज दैट आर सराउंडिंग सीरिया. ये आपको टेरिटरी याद रखनी पड़ेंगी. नॉर्थ में टर्की, ईस्ट में इराक, साउथ में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजराइल लेबनान और वेस्ट में मेडिटेरियन सी. अगर सिमिलरली हम बात करें कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सीरिया, सीरिया शोज यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, यानी यहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रिपब्लिक है. रिपब्लिक का मतलब प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो उसी को प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं. और यूनिटरी का गेन मतलब है कि ऑल द पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी देयर इज ओनली लोअर हाउस. क्या सीरिया की कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है? यस, सीरिया हैज डिस्प्यूटेड टेरिटरीज एंड दैट इज नोन एज गोलन हाइट्स. अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाऊं तो ये सीरिया है जिसका कैपिटल है डमास्कस, और इस सीरिया का साउथ वेस्ट पोर्शन लगता है इजराइल से. 1967 अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने सीरिया का कुछ पार्ट छीन लिया था,
और वो कुछ पार्ट कहलाता है गोलन हाइट्स। ये ओरिजिनली सीरिया का पार्ट था, बट नाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल। So it is at the border of Syria and Israel. It is at the southwest portion of Syria and Israel, and it is known as Golan Heights. And it is a disputed territory of Syria, which is at present with under the control of Israel. अगर आप कुछ और सिटीज भी देख पा रहे हैं, तो सीरिया की कैपिटल जैसे डमास्कस है, लेबनान की कैपिटल बेरूट है, लेकिन सीरिया की कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर बात करें, एलेपो एक इंपॉर्टेंट सिटी है, होम्स एक इंपॉर्टेंट सिटी है। ये वो सिटीज हैं जो सीरियन सिविल वॉर में कैप्चर होती जा रही है, सीरियन गवर्नमेंट से छूटती चली जा रही है। तो कुछ और जैसे यहां पे लिखा है, इन 1967 अरब इजराइल वॉर, सीरिया लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ गोलन हाइट्स रीजन टू इजराइल। सीरिया इंडिपेंडेंस से पहले एक फ्रेंच कॉलोनी था, यानी फ्रांस वर्ल्ड वॉर 1 जब फ्रांस जीता, उसके बाद फ्रांस ने सीरिया को कंट्रोल करना शुरू किया, और 1956 में हमने देखा कि सीरिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। यूफ्रेट्स रिवर आप देख सकते हैं, देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिवर नोन एज यूफ्रेट्स, जो आगे जाके पर्शियन गल्फ में मिलती है, और ये यूफ्रेट्स रिवर टर्की से स्टार्ट होती है और सीरिया की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिवर कहलाती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और बाकी और सारी एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करती है। Euphrates River is the most important water source and is the only navigable river. It originates from Turkey and moves eastward towards the eastern part of Syria. So with this information, let us now understand that if you can solve a question of UPSC or not. So consider the following famous cities of West Asia. The first city is Aleppo, second is Damascus, third is Mosul, fourth is Amman, fifth is Hama. City का नाम है Hama. इनमें से कौन सी cities? How many of the above cities belong to Syria? इनमें से कौन सी cities सीरिया की हैं? तो आप देख सकते हैं एलेपो, क्या एलेपो है? बिल्कुल है, एलेपो सिटी है सीरिया की। क्या डमास्कस है? बिल्कुल, डमास्कस सीरिया का कैपिटल है। क्या मोसूल सीरिया में है? नहीं, आप देख सकते हैं मोसूल इराक में है। इराक का कैपिटल बगदाद है, लेकिन मोसूल एक इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इराक है। अमान, क्या अमान सीरिया में है? आप देख सकते हैं अमान जो है वो जॉर्डन का कैपिटल है। हमा एक इंपॉर्टेंट सिटी है, जो होम्स और हमा एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो सीरिया में मौजूद है। तो अगर मैं आपको सही बताऊं तो इसमें से एलेपो, डमास्कस और हमा, ये तीन सिटीज जो हैं वो सीरिया में पाई जाती हैं। बाकी जो मोसूल है वो इराक में हमने देखा, और जो अमान है वो हमने जॉर्डन में देखा। ये सिटीज नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ओनली 3। Moving ahead with the third place in news, that is South Korea. Why has South Korea been news? Because the president of South Korea declared martial law and parliament revoked the order, withdrew the order, and therefore president had to withdraw the order. और आप देख सकते हैं कि president के against impeachment motion भी आ चुका है। अगर हम साउथ कोरिया को मैप में देखने की कोशिश करें, so at the very eastern most side of the world, जापान, साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स विथ वाटर बॉडीज, ऑन द ईस्ट, ऑन द साउथ, ऑन द वेस्ट। इट इज सराउंडेड 3 साइड्स विथ वाटर बॉडीज। और आपको मालूम है, जो कोई भी लैंडमास जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसको आप पेनिनसुला बोलते हो। एंड देयरफॉर दिस एरिया, दिस रीजन इज नोन एज कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला में सदर्न पार्ट इज साउथ कोरिया, एंड the boundary between North and South Korea, is known as DMZ. DMZ का मतलब क्या है? demilitarized zone। और अच्छी बात जो आपको याद रखने की है कि अगर आप देखें तो ये जिस लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट करते हैं, ये जो बॉर्डर जिस लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट करता है वो 38 डिग्री नॉर्थ है, और इसी वजह से इस बॉर्डर को हम बोलते हैं 38th पैरेलल। इसी वजह से इस बॉर्डर को हम 38th पैरेलल का भी नाम देते हैं। दैट इज द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। जो डीमिलिटराइज्ड जोन है वो नो मैंस लैंड है, लेकिन इट लाइज ऑन द 38 डिग्री नॉर्थ, देयरफॉर इट इज नोन एज 38th पैरेलल। जैसे यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को 49th पैरेलल बोलते हैं, वैसे ही कोरियन बॉर्डर को हम 38th पैरेलल बोलते हैं। तो अगर हम इसको देखें, on the north, South Korea on the north is bordered by North Korea. On the east it is bordered by Sea of Japan, also known as East Sea. On the south it is surrounded by East China Sea, and on the west it is surrounded by Yellow Sea. तो एक कुछ seas, oceans और seas के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, और इस तरीके से हमने इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में डिवाइड भी किया हुआ है।
If we study what form of government is there in South Korea also has unitary presidential republic and unicameral legislature, जैसे भी हमने सीरिया में देखा, यानी रिपब्लिक यानी हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंशियल देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, यूनिटरी ऑल द पावर्स आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है दैट देयर इज ओनली वन हाउस एंड दैट विल बी द लोअर हाउस. क्या साउथ कोरिया की कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है? यस, देयर आर 2 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन साउथ कोरिया. सबसे पहले अगर ये साउथ कोरिया है तो एक जो टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड होगी वो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, वो एक छोटा सा आइलैंड है बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान. तो ये जापान और साउथ कोरिया के बीच में एक आइलैंड यहां है, एक आइलैंड यहां है. यहां पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूं आपको. एंड दीज आर दी 2 islands दैट आर देयर बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान. So if you can understand that this is Republic of Korea, this is the Korean Strait. Korean Strait is a water body. Strait is a water body that separates 2 land masses. तो Korean Strait is a water body that is separating Korea and Japan. तो कोरिया और जापान के बीच में जो टेरिटरी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुशीमा. टी साइलेंट है, सुशीमा आइलैंड. सुशीमा आइलैंड कहां है? कोरिया और जापान के बीच में. तो कोरिया और जापान के बीच में अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला यहां पे छुपा हुआ है, छुपा हुआ आइलैंड है, लेकिन यहां पे है सुशीमा आइलैंड. दैट इज ये कोरियन स्ट्रेट है बिटवीन साउथ कोरिया एंड जापान. एक और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नाम है लियांगकोट रॉक्स. उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नाम क्या है? लियांगकोट रॉक्स. ये भी साउथ कोरिया और जापान के बीच में है. एंड लियांगकोट रॉक्स को कोरियन और जापानीज लैंग्वेज में, कोरियन और जापानीज लैंग्वेज में अलग अलग नाम दिया हुआ है. ये वो नाम है. ये नाम अगर आप याद रख सकते तो अच्छी बात है. नाम आपको जो याद है वो है ताकाशिमा. ताकाशिमा is the name of the island in Japanese. It is the name of the island in Japanese, which is disputed between Republic of Korea and Japan. तो जापान और कोरिया के बीच में कई सारे आइलैंड हैं. एक का नाम है ताकाशिमा और एक का नाम है सुशीमा. ये 2 आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया. बेस्ड ऑन दिस, इसके अलावा अगर हम कुछ और इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करें तो कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसए, लीडिंग टू नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय कैपिटलिस्ट, नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट एंड साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय कैपिटलिस्ट. डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया आल्सो नोन एज 38th पैरेलल. ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. अब क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी इन द ईस्ट. आप देख सकते हैं क्या साउथ में, कोरिया के साउथ में साउथ चाइना सी है? नहीं. साउथ चाइना सी कहां है? अगर ये चाइना और ये ताइवान है, ये ताइवान है, तो ताइवान के इस तरफ हमें मिलता है साउथ चाइना सी, जहां पे वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ये सारे आइलैंड्स मिलके चाइना के साथ 9 डैश लाइन में साउथ चाइना सी बनाते हैं. तो दूर दूर तक कोरिया का साउथ चाइना सी से कोई लेना देना नहीं है. ईस्ट चाइना सी साउथ कोरिया के साउथ में है, वो ईस्ट में नहीं है. ईस्ट में ईस्ट सी है. तो ईस्ट चाइना सी और ईस्ट सी में फर्क याद रखना आपको. यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो ये कुछ वाटर बॉडीज है जो आपको याद रखनी है. एंड देयरफॉर रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज सराउंडेड बाय साउथ चाइना सी इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सी इन द ईस्ट. ये गलत है. साउथ में इट इज ईस्ट चाइना सी एंड इन द ईस्ट इट इज ईस्ट सी. The disputed islands of Liangcourt rocks lie between South Korea and Japan. This is absolutely correct. So which of these are correct? Only 2. So that is B. Moving ahead with the next place, that is Taiwan. Taiwan aa gaya. That is the map of Taiwan. Taiwan was in news because the leader of Taiwan met the Speaker of US Congress in Hawaii while flying back from America to Taiwan. The leader of Taiwan took a stopover in Hawaii, which is the island, which is the one of the states of USA, and there the Speaker of US Congress met the leaders of Taiwan, which made China very angry. Now, where is Taiwan? This is Taiwan. Taiwan is between China. Taiwan lies in the South China Sea, southeast of mainland China. तो चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है. और ताइवान के अब अगर हम देखेंगे, नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है, वेस्ट में ताइवान स्ट्रेट है, ईस्ट में हम देखेंगे फिलीपीन सी है और साउथ में हम देखेंगे साउथ चाइना सी और फिलीपीन आइलैंड्स हैं. तो इफ वी सी ताइवान,
In the north we have East China Sea. On the northeast इस तरफ we have Okinawa Islands of Japan. अगर मैं आपको देखिए, ये ताइवान है और यहां से जापान के कुछ एक्सटेंडेड आइलैंड्स हैं, जो जिनको हम बोलते हैं ओकिनावा आइलैंड्स which belong to Japan. So Taiwan on the northeast lie the Okinawa Islands of Japan. On the east we have Philippine Sea. On the south we have Philippines, not Philippine Sea but Philippines, and the water body is known as, the water body separating the Philippines and Taiwan is known as Luzon Strait. Southwest में we have South China Sea and the west we have Taiwan Strait and mainland China. तो ये कुछ regions आपको समझ में आने चाहिए. Again, what form of government is present in Taiwan? Unitary semi-presidential republic, जो हमने देखा फ्रांस के केस में, फ्रांस की जैसी ही टेरिटरी है ताइवान में. Unicameral system, there is only one house. Is there any disputed islands? Yes, we saw that there are Senkaku Islands that is disputed between Taiwan. So these are Senkaku Islands. Senkaku Islands अगर आप देखेंगे, तो ये सारा जो टेरिटरी है ये जापान का है. यहां पे एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड्स. सेनकाकू आइलैंड्स मेनलैंड चाइना भी बोलता है, ताइवान भी बोलता है, और क्योंकि ओकिनावा आइलैंड के पास है तो जापान भी क्लेम करता है. सो देयर आर 3 क्लेमेंट्स फॉर सेनकाकू आइलैंड्स, मेनलैंड चाइना, ताइवान एंड जापान. एट प्रेजेंट इट इज कंट्रोल्ड बाय जापान. तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन ताइवान एंड जापान. What you should remember is that Taiwan was earlier known as Formosa. The island of Taiwan was known as Formosa, which was initially in the control of Japan. When Japan got defeated in World War II, it was handed over to China. And when there was Chinese Civil War, in which the Communist Party won, the first political party, which was KMT, Kuomintang, they went on exile in the island of Formosa, where they established Taiwan. तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ताइवान को ऑफिशियली हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, एंड मेनलैंड चाइना इज नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC. तो PRC जो है वो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे रूल करती है. लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो मैप है रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का है. रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कैपिटलिस्ट है सपोर्टेड बाय USA, और वहां पे कुनमिंगतान पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है जो एग्जाइल में है, जो इंडिया भी जिसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करता ऑफिशियली. सो दैट इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट Taiwan that you should remember. Now, based on this information, let us try to understand the question. Which among the following statements with reference to island of Formosa is correct? Island of Formosa was annexed from Philippines by China. It is wrong. It was annexed by Japan, and when Japan got defeated, it was given to mainland China. The island lies between East China Sea and Yellow Sea. नहीं, East China Sea यहाँ है, Yellow Sea ये है Yellow Sea. इसको बोलते हैं Yellow Sea. और ईस्ट चाइना सी है यहां, तो इन दोनों के बीच में कोई आइलैंड नहीं है. फॉर्मोसा आइलैंड यहां पे है, तो दूर दूर तक ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. द आइलैंड इज इनहैबिटेड बाय एथनिक हान पॉपुलेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर बिकॉज चाइनीज आर एथनिकली कंसिडर्ड एज हान पॉपुलेशन. हान कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. 90% ऑफ चाइनीज बिलोंग टू हान ट्राइब्स. एट प्रेजेंट द आइलैंड बोथ मेनलैंड चाइना एज वेल एज ताइवान. At present, the island is under sovereignty of People's Republic of China. गलत है. It is under the control of Republic of China, ROC. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए about Taiwan. Moving ahead with the next place, that is Kumhar, which is in Patna in India. This was in news because recently Archaeological Survey of India has decided to open up this place. This is an archaeological site. This is an ancient historical site जहां पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करी गई थी. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज अशोका कंडक्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन दिस प्लेस. ये आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर कैसा था. तो एंशिएंट आर्किटेक्चर मार्वल्स, क्योंकि इसमें 80 सैंडस्टोन पिलर्स हैं
सैंडस्टोन पिलर्स की अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूं, सो दीज आर दी सैंडस्टोन पिलर्स जो प्रेजेंट है। और यहां पे एक असेंबली हॉल हुआ करता था, तो एक असेंबली हॉल हुआ करता था जहां पे 80 पिलर्स थे, उन 80 पिलर्स को एक्सकवेट करके बाहर निकाला है, एंड नाउ इट इज अगेन बीइंग ओपन फॉर पब्लिक। तो अगर इसके बारे में, सो इट ऑल्सो लिंक्स द प्रेजेंट डे पटना विथ द एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। अब अगर हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कुम्हार आर्कियोलॉजिकल साइट। इट वाज कंसिडर्ड एज अ साइट वेयर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड। यस, this statement is right, there is no problem. The site consisted of 80 sandstone pillars in an open air assembly hall. Yes, enclosed nahi tha, it was an open air assembly hall. This is also right. The features of this place you can find and get to understand in the Hindu newspaper. And which of the above statements are incorrect? इनमें से गलत कौन सी है? दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। So D, neither one, neither two are incorrect. Moving ahead with the next city, that is known as Bhutan. Bhutan में there is a city known as Galefu city. Galefu city is in Bhutan and it has been in news because recently the Prime Minister of Bhutan was in India and he decided that Galefu city will be built in collaboration, cooperatively with India and Bhutan. Galefu city is considered as a mindfulness city with zero emissions, no carbon emissions. It is a carbon negative country. So if we see where is Bhutan in the map, you may be knowing that it is a bordering country. It is a bordering country of India. So Bhutan in the north, in the northeast, in the northwest, in the north, in the northeast, from everywhere it is surrounded with China. In the east it is surrounded with Arunachal Pradesh. In the south it is surrounded by Assam, and the west it is surrounded by Sikkim. Actually it is not surrounded by west in the Sikkim, it is surrounded by Tibet or China, but in the southwest portion we see that there is Sikkim. So that way you will understand where Bhutan is. So that way we have also classified Bhutan, the neighboring countries. What form of government exists in Bhutan is unitary parliamentary constitutional monarchy. अभी तक हम रिपब्लिक पढ़ते आ रहे थे, अब हम पहली बार देख रहे हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब किंग, लेकिन कैसा किंग? हेरिडिटरी होगा, जो इलेक्ट नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा मोनार्की जैसे यूके में है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी ऐसा मोनार्की जो होगा तो हेरिडिटरी बट अपनी मन की मर्जी नहीं करेगा। द किंग विल ऑल्सो बी बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा, यूनिटरी का मतलब है ऑल पावर्स आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज नो पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। Disputed territory, there is one disputed territory known as Doklam Plateau which is claimed by China and Bhutan. Both it is at present in the control of Bhutan. आपको याद होगा 2017 में दोकलाम क्लैशेस हुए थे, दोकलाम प्लेटो में क्लैशेस हुए थे, जहां पे इंडिया ने भूटान को सपोर्ट किया था और चाइनीज फोर्सेस के साथ उनका एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। दोकलाम प्लेटो कहां पे एग्जिस्ट करता है? दोकलाम प्लेटो यहां पे एग्जिस्ट करता है, चाइना, इंडिया और भूटान के ट्राई जंक्शन पे। If we try to understand some additional information about the country of Bhutan, it is this Galefu city. This Galefu city will be connected to India by India-Bhutan Railways, joint cooperation. The whole country is carbon negative because that simply means that it is absorbing more CO2 than it emits. That means it is carbon negative. There is one index known as Gross National Happiness Index, which is responsible for guiding the government of Bhutan. That means they give more preference to the happiness of the citizen rather than development of a citizen. And based on this information, let us try to understand the question. Bhutan is surrounded by Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam in India. Yes. However, this statement is right. However, if the statement was Bhutan is surrounded only by Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam in India, this will also still be correct, there is no problem. However, if I remove the word in India and I write Bhutan is surrounded only by Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam, then this will be wrong. Abhi at the moment this is right because Bhutan is surrounded by Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam in India, this is right.
Bhutan maintains carbon negative by producing majority of electricity through hydel power. This is also correct. Bhutan is a parliamentary democracy with monarchy as a head of the state. This is also correct. So all three statements are correct. So the correct answer goes to C. All three. So these were the different places that were present in the first week of December. Please keep watching our playlist, keep watching our series. हम आपके लिए और भी weekly basis पे different cities, different places जो news में mentioned है, उनको questions के साथ आपके सामने लाएंगे, so that you can prepare yourself well for prelims examination. Please stay with us till then. Thank you.